So, very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the subject Railways, Airport, and Waterways. This will be the continuation part of the previous lecture, that is the lecture number 13. In lecture number 13, we were talking about the numericals related to the negative super elevation, permissible speed, okay, and the relationship between the radius and degree of the curvature, right? So in the continuation to that process, how we will design the negative super elevation on the main line, branch line. Till now we have covered 5 different types of examples, and in that example we have also seen how we determine the weighted average speed and all, okay, and using that weighted average speed, how we calculate the uh, Kant equilibrium, how we calculate the Kant deficiency, how we calculate the theoretical speed, right? What will be the restricted speed. Now what I have done is I have designed this lecture actually to clear some of the more concept with some few more examples. Okay, so let us have a look to some few example, and in this example I will be also discovering the questions related to the meter gauge and narrow gauge as well, because till now अभी तक जो हमने है ब्रॉड गेज के बारे में देखा है, थोड़ा सा मीटर गेज का भी देख लेते हैं. कोई डिफरेंस नहीं है सच. मीटर गेज में आपका बेसिकली क्या होगा कि उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो एक एग्जांपल है, अगर एक एग्जांपल कुछ इस तरह है कि व्हाट वुड बी द परमिसिबल स्पीड, व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द permissible what would be the permissible speed on the curve, what would be the permissible speed on the curve, what would be the permissible speed on the curve if on a 8-degree meter gauge track, if on a 8-degree meter gauge track the average speed of different trains of different trains is एवरेज स्पीड दिया हुआ है वो है 50 kmph, and allowable Kant deficiency is allowable Kant deficiency is half to that of maximum Kant deficiency, maximum to that of maximum Kant deficiency, right? So this is basically your question. क्वेश्चन क्या कह रहा है, what would be the permissible speed on the curve. हमें permissible speed निकालनी है. क्वेश्चन का ये पूरा एक ब्रीफ अगर हम कंक्लूजन निकालें तो if on a 8-degree meter gauge track, इसका मतलब ये ट्रैक मीटर गेज है, उसका कर्वेचर 8 डिग्री है, the average speed of different train is 50 kmph and the allowable Kant deficiency is half to that of maximum Kant deficiency. तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मैंने आपको बताया था, वो होता है कि हम इक्विलिब्रियम कांट को निकालते हैं. तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांट है मीटर गेज के लिए वो कितना होता है. तो पहला स्टेप ऐसे करो, इक्विलिब्रियम कांट, okay, equilibrium Kant for meter gauge track, for meter
गेज ट्रैक, और ये कितना होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्ट मीटर गेज के लिए कितना होता है 0.80 v स्क्वायर बाई आर, ये 0.80 v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू हमको पता है, कैसे निकालते हैं 1720 बाई डी, तो 1720 बाई डी, डी क्या है यहाँ पे 8 है, तो ये हो गया 8, तो इक्विलिब्रियम कांट कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.8 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है 50, 50 इंटू 50, ओके, बाई आर, आर क्या है 1720 इंटू 8, तो यहां से इक्विलिब्रियम कांट कितना निकला, वही जो स्टेप कल बताया था प्रीवियस जो मेरे लेक्चर में था वही इसमें भी है, तो यहां से इक्विलिब्रियम कांट कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर, राइट। अब आगे जाइए, इतना समझ आ गया। अब आगे जाते हैं, क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, इफ 8 डिग्री मीटर गेज ट्रैक the average speed of different trains is 50 km/h, okay, and allowable current deficiency is half to that of the maximum current deficiency, ठीक है, और ये कौन सा ट्रैक है, ये है मीटर गेज, ठीक, तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन मीटर गेज के लिए कितना होता है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो अलाउड है मीटर गेज के लिए, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन वो कितना है, इट इज 1/10 ऑफ द गेज, 1/10 ऑफ द गेज, ठीक है, तो 1/10 ऑफ द गेज, ठीक है, गेज कितना है 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया इंटू 1 मीटर, तो ये हो गया 0.1 मीटर, ठीक है, तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना आ गया 0.1 मीटर, ठीक है, जो जिसको इक्वल कर दोगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। अब तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, तीसरा स्टेप हमेशा क्या होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, तीसरा स्टेप होता है थ्योरेटिकल कांट, तो थ्योरेटिकल कांट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जो थ्योरेटिकल कांट होता है वो होता है मैक्सिमम कांट प्लस कांट डिफिशिएंसी, मैक्सिमम कांट प्लस कांट डेफिशिएंसी, राइट, यहां आपका मैक्सिमम कांट कितना है एंड अलाउएबल कांट डिफिशिएंसी इज हाफ टू दैट ऑफ द मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी, और मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी कितना है, वो है आपका, एक मिनट, मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी कितनी है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, और कांट डिफिशिएंसी कितनी है, वो है हाफ ऑफ दैट ऑफ द मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी, राइट, तो ये थ्योरेटिकल कांट अगर आप निकालोगे, देखो कंफ्यूज मत हो, थ्योरेटिकल कांट निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए मैक्सिमम कांट, तो मैक्सिमम कांट इस केस में क्या है, मैक्सिमम कांट जो हमने निकाला है वो है 10, राइट, बस 10 रख दिया, ठीक है, प्लस कांट डिफिशिएंसी, और जो आपकी अलाउएबल कांट डिफिशिएंसी है इट इज हाफ टू दैट ऑफ द मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी, तो मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी का हाफ क्या हुआ, मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी का हाफ कितना हुआ, ये हो गया हाफ ऑफ द 5.1, हाफ ऑफ द 5.1, ठीक है, क्योंकि कांट डिफिशिएंसी मीटर गेज के लिए कितनी होती है मैक्सिमम 5.1 होती है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, थ्योरेटिकल कांट होता है मैक्सिमम कांट प्लस कांट डिफिशिएंसी, ठीक है, मैक्सिमम कांट आपका हमने निकाला है 10 सेंटीमीटर,
कांट डिफिशियंसी जो है, कांट डिफिशियंसी मीटर गेज के केस में होती है 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर। तो इस केस में कितना है वो, हाफ ऑफ दी 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो अलाउेबल है इस केस में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कांट कितना निकल के आ गया, 2.55 सेंटीमीटर, सॉरी 2.55 सेंटीमीटर। तो ये आपका थ्योरेटिकल कांट यहां से कितना निकल के आ गया, थ्योरेटिकल कांट की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 10 प्लस 2.55, ये हो गई 12.55 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैक्सिमम स्पीड कैसे निकल के आएगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, हेंस मैक्सिमम स्पीड corresponding to theoretical कांट, तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट e इंटू आर बाई 0.80। तो v इक्वल्स टू हो गया e हो गया आपका 12.55 इंटू r की वैल्यू आपने निकाली है 1720/8, जो हो गया 1720 0.80 इंटू 8। तो यहां से v कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 58 kmph। पहले यहां तक समझ आया, v की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 58 kmph। अब हम क्या करेंगे, जो रेलवे बोर्ड का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम कांट निकालना होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे जाइए, पहले क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी दी परमिसिबल स्पीड ऑन द कर्व, हमें परमिसिबल स्पीड निकालनी है कर्व पे। इफ ऑन अ 8 डिग्री मीटर गैस ट्रैक the average speed of different trains is 50 kmph and allowable Kant deficiency is half to that of maximum Kant deficiency। तो इसका क्वेश्चन का क्रक्स ये है कि इसमें ब्रॉड गेज ना होकर के ये मीटर गेज है। सबसे पहले स्टेप 1 पे जाओ, स्टेप 1 क्या कहता है, पहले हम इक्विलिब्रियम कांट निकालते हैं, उस जो स्पीड पे, उस अलाउएबल स्पीड पे हम इक्विलिब्रियम कांट निकालते हैं उस मीटर गेज के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांट फॉर मीटर गेज ट्रैक इक्वल्स टू 0.80 इंटू वी स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू क्या है, 1720/d, आपको पता है यही होती है उसके रिलेशनशिप से एस्टेब्लिश करके। तो इक्विलिब्रियम कांट कितना आ गया, ये आ गया 9.3 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है, वो होता है 1/10 ऑफ द गेज, 1/10 ऑफ द गेज। जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं मीटर गेज के केस में, इट शुड बी 1/10 ऑफ द गेज डिस्टेंस। तो 1/10 ऑफ द 1 मीटर, 0.1 मीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। नाउ theoretical Kant is actually the sum of the maximum Kant plus Kant deficiency, and maximum Kant is how much, 10 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। देखो यहाँ हमने इक्विलिब्रियम कांट निकाला 9.3 और कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 10, तो ये सही है, ठीक है। तो हम 10 सेंटीमीटर यहाँ मैक्सिमम कांट रखेंगे। अगर ये ज्यादा होता इससे तो ये रखते, ठीक है, तो ये रखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस कांट डेफिशिएंसी। और इस केस में कांट डेफिशिएंसी कितनी है, हाफ ऑफ द दैट ऑफ द मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी, अलाउबल कांट डेफिशिएंसी। इस केस में हम कांट डेफिशिएंसी वही लेंगे, इट शुड बी दी हाफ ऑफ द अलाउबल वन। तो अलाउबल इस केस में कितना होता है मीटर गेज में, वो होता है 5.1। तो यहां से ये कितना आ गया, कांट डेफिशिएंसी 2.55 सेंटीमीटर। तो थ्योरेटिकल कांट कितना हो गया, 10 प्लस 2.55, इट इज इक्वल टू 12.55 सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड करस्पॉन्डिंग टू थ्योरेटिकल कांट कितना होता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट e बाई आर, e इंटू आर अपॉन 0.80, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक।
तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई 58 kmph। ठीक है, ये तो हो गई स्पीड करस्पॉन्डिंग टू दी थ्योरेटिकल कांट। थ्योरेटिकल कांट पे हम इतना निकालेंगे। अब हम रेलवे बोर्ड के फॉर्मूला को यूज करके अगर हमको स्पीड निकालनी हो तो वो क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड वो होता है मीटर गेज के लिए 4.35 अंडर रूट r माइनस 67। ठीक है, तो अब हम जो हमारा अगला स्टेप होगा, इसका मतलब हमारा जो फिफ्थ स्टेप होगा, इट विल बी according to the formula of speed, given by railways board। तो रेलवे बोर्ड ने क्या फॉर्मूला दिया है, वो है V max equals to 4.35 अंडर रूट r माइनस 67। तो 4.35 इन अंडर रूट 1720 बाई 8 माइनस 67। तो V max इस केस में कितना आ गया, ये हो गया V max इक्वल्स टू, ये हो गया 52.7 kmph। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कितना आ गया, वो था 58 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम कितना आ गया 52.7 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम स्पीड परमिसिबल विल बी, वो कितनी होगी, लोअर ऑफ दी दिस वैल्यू, मतलब लोअर ऑफ दी थर्ड वैल्यू एंड लोअर ऑफ दी फोर्थ वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम अलाउबल परमिसिबल स्पीड इस क्वेश्चन में कितनी होगी, वो होगी 52.7 kmph। ये हो गया आपका आंसर। तो इस केस में जो आंसर पूछा है, व्हाट वुड बी द परमिसिबल स्पीड ऑन द कर्व, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन द कर्व विल बी, अगर हम आंसर इसका मैं बताऊं आपको एक लाइन में इसका आंसर जानिए, इट विल बी 52.7 kmph। क्लियर है? So this is your one of the type of the numerical related to the meter gauge. Okay. इसको नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालनी है, मीटर गेज दिया हुआ है, उसका डिग्री 8 डिग्री है, एवरेज स्पीड 50 kmph है, और अलाउबल कांट डिफिशिएंसी जो है वो हाफ टू दैट ऑफ मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी। तो हमने इक्विलिब्रियम कांट निकाला, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन निकाल के थ्योरेटिकल कांट को निकाला, थ्योरेटिकल कांट निकाल करके हमने मैक्सिमम स्पीड निकाला which is corresponding to the theoretical कांट। उसके बाद हमने मैक्सिमम स्पीड निकाला using the formula of the railway board 4.35 under root r minus 67। This is about your this type of numerical. Please note it down so that I can rub it and we can go for the second one। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट डिकांट डिफिशियंसी। दूसरा एग्जाम्पल है कैलकुलेट डिकांट डिफिशियंसी, कैलकुलेट दी कांट deficiency, calculate the Kant deficiency and permissible speed and permissible speed for a 4 degree curve, for a 4 degree curve
ऑन अ बीजी ट्रैक, मतलब ब्रॉड गेज ट्रैक, ऑन अ बीजी ट्रैक। छोटा सा सवाल है, बस स्टेप्स को याद रखना है और करते जाना है। करना क्या है? करना है कांट डिफिशिएंसी को निकालना है और परमिसिबल स्पीड को निकालना है। कितने कर्व पे? 4 डिग्री कर्व पे। और किस ट्रैक के लिए? ब्रॉड गेज के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डिग्री ऑफ कर्व, गिवन डिग्री ऑफ कर्व, कर्व कितना है? सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम टू द मीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, हाफ ऑफ दी या 58 या आ गया 9, तो ये सही है। ठीक है, अलाउबल इस केस में ई इंटू को स्पीड निकाल इन टाइम लोअर ऑफ द थर्ड। अगर हम आंसर के हमने मैक्सिमम स्पीड निकाल बाय अंडर रूट r minus 67. This is about your this type of formula. Please note it down so that I can rub it and we can go for the second one. V equals to 4.35 under root r minus and permissible. So V की वैल्यू curve 4.35 under root r 1720 by 4 minus 67। तो यहां से V कैलकुलेट करोगे तो आएगा 83 kmph, 83 kmph। इतना समझ आया? रेलवे बोर्ड फॉर्मूला यूज करके हमने ब्रॉड गेज की केस में सबसे पहले क्या निकाल लिया? स्पीड निकाल लिया। तो वो कितना आया? 83 kmph। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांट निकालेंगे इस स्पीड के लिए। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांट फॉर दिस स्पीड। तो ये कितना होता है? 1.315 v स्क्वायर बाई आर। सो 1.315 इंटू वी स्क्वायर 83 का स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू 1720 इंटू 4 जो आ गया, कितना आएगा? ये आएगा, ई की वैल्यू आएगी 21.18 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, मैक्सिमम कांट कितना अलाउड होता है इस केस में? 17 सेंटीमीटर या तो 16.5 सेंटीमीटर ब्रॉड गेज के ट्रैक में। ठीक है, तो मैक्सिमम कांट अलाउड फॉर बीजी ट्रैक, मैक्सिमम कांट अलाउड फॉर बीजी ट्रैक is actually 16.5 सेंटीमीटर। तो कांट डिफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? कांट डिफिशिएंसी आ गई 21.18 माइनस 16.5 सेंटीमीटर, और ये आ गया 4.68 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम अलाउड कांट डिफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए ब्रॉड गेज के लिए? कितनी होती है? 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ कर्व दिया है 4 डिग्री, रेडियस निकाला। ठीक है, ये इक्वेशन ए है, इससे हमने एक रेडियस निकाला, रेडियस हो गया 1720 बाई 4। स्पीड निकाला हमने रेलवे बोर्ड फॉर्मूला यूज करके 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, वहां से हमारी स्पीड 83 kmph हो गई। अब इक्विलिब्रियम कांट हम निकालेंगे इस सी फॉर्मूला का यूज करके ब्रॉड गेज के लिए। ठीक है, वो ई की वैल्यू हो गई 1.315
v square by r, so 1.315 v square by r, ठीक है। तो ये हो गया, E की वैल्यू कितनी हो गई 21.18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आगे देखो, मैक्सिमम कांट अलाउड फॉर बीजी ट्रैक कितना अलाउड होता है 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में कांट डिफिशिएंसी कितनी हो गई 4.68 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिक्वायर्ड स्पीड कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा ऐसे लिखना पड़ेगा, बट मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी अलाउड, बट मैक्सिमम कांट deficiency allowed equals to 7.6 centimeter. On allowing maximum cant equals to 16.5 centimeter. So required super elevation कितना हो गया, required super elevation will be required super elevation equals to कांट डिफिशिएंसी कितनी है, कांट डिफिशिएंसी इज 4.68 सेंटीमीटर, तो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन हो जाएगा 10.82 सेंटीमीटर। So required, hence required speed v equals to, देखो E equals to क्या होता है 1.315 v स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो r equals to v equals to अंडर रूट E into R by 1.315. So V equals to under root 10.82 into R 430 by 1.315. So V equals to 59.49 kmph। ये कौन सी स्पीड हुई, ये हुई आपकी थ्योरेटिकल स्पीड। ये कौन सी स्पीड हुई, ये हो गई थ्योरेटिकल स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर हमको कांट डिफिशिएंसी और परमिसिबल स्पीड निकालनी है तो वो ऐसे निकालते हैं, राइट। लेकिन आपकी जो अलाउएबल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड अलाउड है, वो कितनी है, एक्चुअल स्पीड अलाउड इज 48 kmph। एक्चुअल स्पीड अलाउड इज वो कितनी है 48 kmph। ये हो गया आपका एक और तरह का न्यूमेरिकल। अगर आपको केवल 4 डिग्री कर्व दिया है और ब्रॉड गेज दिया है, तो उस केस में हम कांट डिफिशिएंसी और परमिसिबल स्पीड कैसे निकालेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो स्टेप है, वो पहला स्टेप कुछ ऐसा होगा कि हम डिग्री ऑफ द कर्व को देखेंगे वो कितना है 4 डिग्री। फिर हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करके r इक्वल्स टू 1720 बाई डी, उससे हम रेडियस निकालेंगे। उस रेडियस का यूज करके हम उसको फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, जिससे हम स्पीड निकालेंगे बाय यूजिंग द रेलवे बोर्ड फॉर्मूला, और विच v इक्वल्स टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67, r की वैल्यू 1720 बाई 4 माइनस 67 एंड v इक्वल्स टू 83 kmph। तो v की वैल्यू क्या हो गई 83 kmph हो गई। इक्विलिब्रियम कांट कितना हो गया E इक्वल्स टू 1.315 v स्क्वायर बाई r। सो v की वैल्यू 83 हो गई और r आपकी वैल्यू निकाला है, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया 21.18 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो हो गया थ्योरेटिकल, जो हमने v पे निकाला है, लेकिन कितना कांट अलाउड है वो है 16.5 सेंटीमीटर फॉर दी ब्रॉड गेज। तो कांट डिफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, उतने में से इतना माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या निकल के आ गई, हमको कांट डिफिशिएंसी निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
और मैक्सिमम कांट डिफिशियंसी कितनी अलाउड है, वो है 7.6 सेंटीमीटर, राइट. सो ऑन अलाउइंग मैक्सिमम कांट 16.5 सेंटीमीटर एंड कांट डिफिशियंसी 4.68 सेंटीमीटर, अगर हम इस दोनों को अलाउ करते हैं तो इस केस में हमारा रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन कितना हो जाएगा, वो होगा 10.82 सेंटीमीटर. और रिक्वायर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, वो यहाँ के फॉर्मूले से E इक्वल टू 1.315 v स्क्वायर बाई आर. तो v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ई इंटू आर अपॉन 1.315. तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया, v इक्वल टू 59.49 kmph. ये हो गई आपकी थ्योरेटिकल, लेकिन ये 48 kmph से ज्यादा है जो कि हमारी अलाउड है. तो इस केस में एक्चुअल अलाउबल स्पीड कितनी होगी, वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए. एक आज का लास्ट न्यूमेरिकल, what would be the equilibrium Kant, what would be the equilibrium, what would be the equilibrium Kant on a meter gauge, on a meter gauge curved track, meter gauge curved track of 7 degree for an average speed, for an average speed of trains 50 kmph, also calculate the maximum permissible speed, the maximum permissible speed, also calculate the maximum permissible speed after allowing the maximum Kant deficiency, after allowing the maximum Kant deficiency. This is the assignment for the today's date. ये क्वेश्चन आपको करना है. ये क्वेश्चन जैसे मैंने सारे चीजें कराए थे प्रीवियस वैसे ही करना है. What would be the equilibrium Kant on a meter gauge curved track of 7 degree for an
average speed of trains 50 km/h. Also calculate the maximum permissible speed after allowing the maximum current deficiency, and the current deficiency for meter gauge is 5.0 centimeter. So this, you have to solve this question. This question will be as assignment, and in next lecture I will be talking the solution of this lecture. Okay, so this is all about the today's lecture. Today's lecture was all about the numerical part. It was the continuation part of the previous lecture. Now in next lecture we will talk about some of the numericals related to the transitional curve also. So thank you so much. Thank you listening to very patiently. Have a good day. Have a nice day. Thank you guys.